Morning children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes computer series part 2. Children, we were doing chapter 4 of this book. The heading of our chapter is keyboard. Children, in this chapter we will reading all about keyboards. As we know, there are several keys on the keyboards. So we have read some of the functions, some of the keys, and we are going to read further in this chapter. Before going further in the chapter, let us revise whatever we did in our previous video. So children, let us start. So children, in our previous video we studied that keyboard has 26 alphabet keys marked with A to Z. These keys help to type words and sentences. So children, here we can see we have alphabet A to Z, which are 26 letters, or children, these words, these alphabets are used for writing words and sentences. So we have studied that just below the number keys, we have two types of number keys. Just below the number keys we have alphabets which are arranged in 3 rows. So children, let us see. Here is the rows, first row, second row and third row. These are the alphabet keys which are used for typing letters or the words. Children, one more thing we studied when we were studying this, we have studied that the common keyboard which we use nowadays is named after these 6 letters of English alphabet. The arrangement of first 6 letters in the keyboards are QWERTY. They are pronounced as QWERTY, and this name is given to the keyboard which we commonly use. तो बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले अपने वीडियो में, हमने क्या पढ़ा था? हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था. कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड पे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं बीच में कीबोर्ड के 3 रोज़ में अरेंज्ड हैं. और जो पहला रो है जो आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहाँ इट इज़ रिटन QWERTY. हमको यहाँ पे QWE बेटा QWERTY, QWERTY. These words, these letters, children, together form a word called QWERTY, and this name is given to the keyboard which we generally use. जो common type का हम keyboard use करते हैं उसको हम कहते हैं QWERTY keyboard. ओके, नाउ और इसका नाम QWERTY पड़ा है जो फर्स्ट रो में पहले 6 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उससे इसका नाम पड़ा है QWERTY. इसका नाम पड़ा है QWERTY keyboard. Let us see, it is given here also. I'll show you later on. तो children, alphabet में we have 26 alphabet keys marked with A to Z. जो अल्फ़ाबेट की होते हैं ये पूरे टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. चिल्ड्रन, these are the total number of alphabet keys which you can see on your screen. यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट की हैं ये 26 अल्फ़ाबेट कीज़ हैं with A to Z. Each key helps us to type words and sentences. हमको कोई भी वर्ड या सेंटेंस टाइप करना है तो हम इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं. And these together form a word called QWERTY. QWERTY is the name of the keyboard which we generally use, commonly use. So this is all about alphabet which we studied in our previous video. Then we studied number keys. Children, the number keys are marked with digit 1 to 9 and 0. Total number of keys are 10. They are called number keys. They are 10 in number, as I told you in my previous video also. They are used for typing numbers or digit. या नंबर टाइप करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है या डिजिट टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये सारे जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, these are the number keys. And children, as I showed you in the online class also, showing the original keyboard,
that these keys are arranged just above the alphabet. जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है अरेंज्ड हैं, उसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर एक रो में ये सारे नंबर्स अरेंज्ड है. Let us see what is written here. So children, number keys are present at 2 places on the keyboard. I showed from the original keyboard also. In online classes I showed you my keyboard. In the keyboard I showed that there are 2 number keys. एक तो ये होता है जिसे हम नंबर कीपैड कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड हम इसको कहते हैं. ये राइट हैंड साइड में होता है, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में होता है. मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी ओरिजिनल कीबोर्ड दिखाया था और इसमें इन नंबर कीज़ को दिखाया था. ये हमारे राइट हैंड साइड में होते हैं, इनको हम न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं. और एक जो होता है, दूसरा होता है ये जो अल्फ़ाबेट के ऊपर अरेंज होते हैं. एक तो ये है जो अल्फ़ाबेट के ऊपर अरेंज होता है, इसको हम नंबर कीज़ बोलते हैं. And the other one is this, which is arranged on the right hand side of our keyboard. So children, here we have 2 number keys. आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 2 तरह के नंबर कीज़ हैं. Number keys are present at the 2 places on the keyboard. First one is on the upper row of the alphabet. जैसा कि मैंने बताया, एक जगह अल्फ़ाबेट की के ऊपर वाले रो में होते हैं और दूसरे जगह on the right of the कीबोर्ड. दिस इज़ कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड. हम इसको कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज न्यूमेरिक कीपैड. तो जो हमारा नॉर्मल क्वर्टी कीपैड है, इसके ऊपर 2 जगह वी हैव न्यूमेरिक कीज़ एंड दीज न्यूमेरिक कीज़, नंबर कीज़, वन इज़ नोन एज नंबर कीज़ दैट इज़ अरेंज्ड जस्ट अबव द अल्फ़ाबेट वेयर द अल्फ़ाबेट्स आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज्ड. सबसे ऊपर वाला जो रो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है उसके ऊपर ये नंबर कीज़ अरेंज्ड हैं. और दूसरा नंबर कीज़ है जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं. यहाँ आप देख सकते हो, दीज आर अरेंज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड. ठीक है, तो नंबर कीज़ आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस. अब चिल्ड्रन, दीज आर फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ नंबर लॉक. Number numeric keypads pad works only when you press the num lock key and keep it open. तो जो हमारे पास 2 नंबर कीज़ होते हैं बच्चों, वो जो न्यूमेरिक कीपैड है वो तभी काम करेगा जब हम नम लॉक जो होता है उसको हम स्विच ऑन करेंगे. जैसे कि न्यूमेरिक कीपैड जो होता है, क्योंकि हमारे पास 2 कीपैड होते हैं तो हम एक को बंद करके. So children, as I told you, we have 3 keys. One is called num lock, caps lock, scroll lock. तो जो num key होता है, this one जो हमने अलग से निकाला इन तीनों में से, num key यानी num lock मतलब नंबर लॉक. तो जैसा कि मैंने बताया, we have 2 नंबर कीपैड्स. एक को हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं और दूसरे को हम नंबर कीज़ बोलते हैं. तो जनरली चिल्ड्रन जो नंबर की होता है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर अरेंज होता है. दैट इज़ वाई फॉर टाइपिंग अ नंबर वी यूज़ नंबर कीज़. लेकिन अगर हमको न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करना है, ये वाला जो राइट हैंड साइड में है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, उसको अगर यूज़ करना है तो हमको ये नम लॉक को स्विच ऑन करना पड़ेगा. न्यूमेरिक कीपैड वर्क्स ओनली. You can update your knowledge. You can see here children, here we have a column in which it is written to update our knowledge. We have to this is something which we may not be knowing. तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि ये जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, मैंने बताया न्यूमेरिक कीपैड किस साइड होता है? कीपैड के राइट हैंड साइड में होता है. जो कीबोर्ड होता है उसके राइट हैंड साइड में होता है. वो एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज होते हैं नंबर्स, उसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं. अगर हम उसको ऑन अपने कंप्यूटर के करने जा रहे हैं तो वी हैव टू स्विच ऑन दिस की, नम लॉक जिसको हम कहते हैं. हम उसको ऑन करेंगे तभी वो एक्टिवेट होगा और तभी वो काम करेगा. तो दिस इज़ अबाउट नम लॉक. अदर दैन दिस चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, देर आर 12 कीज़. सबसे ऊपर कीबोर्ड के रो में, मैंने ये सब आपको कीबोर्ड जब दिखाया था ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको समझाई थी कि सबसे ऊपर वाला जो रो होता है दैट इज़ फंक्शन कीज़. दोज आर फंक्शन कीज़ एंड दीज फंक्शन कीज़ आर स्टार्ट फ्रॉम F1 टिल F12. हमारे पास 12
फंक्शन कीज़ होते हैं, सबका अपना अपना फंक्शन होता है और ये टॉप मोस्ट रो में अरेंज्ड होते हैं हमारे। सो चिल्ड्रन, दीज आर द फंक्शन कीज़। ये जैसा कि मैंने बोला F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन कीज़ होते हैं और ये सबसे ऊपर रो में अरेंज होते हैं। दीज आर अरेंज्ड इन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड एंड ईच एंड एवरी फंक्शन की हैव देयर ओन फंक्शन। हर एक फंक्शन की का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। दैट अबाउट दैट यू विल बी रीडिंग लेटर ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंबल की। एज आई टोल्ड यू, ऑल दीज चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बाय शोइंग इट ऑन द इन द पिक्चर ऑल्सो। आई हैव शोन यू कि जो हमारे नंबर कीज़ होते हैं, जो हमने बताया कि अल्फ़ाबेट के ऊपर अरेंज होते हैं। कहाँ अरेंज होते हैं? अल्फ़ाबेट के ऊपर। जब कीबोर्ड हमने देखा था तो वी हैड सीन नंबर कीज़ हमारे कहाँ पे होते हैं कीबोर्ड में। लेट अस सी द पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड। जो फर्स्ट पेज में दिस इज़ कीबोर्ड। अब ये देखिए, हियर इज़ द, ये है फंक्शन कीज़, ये पूरा फंक्शन की है और इसको हम नंबर कीज़ बोलते हैं। दीज आर नंबर कीज़, ये नंबर की हो गया और इसके नीचे दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़, ये सारे अल्फ़ाबेट कीज़ हो गए। तो नंबर कीज़ ये है जो ठीक अल्फ़ाबेट की के ऊपर होता है। और उसके अलावा ये जो नंबर कीज़ है, ये जो होता है इसको हम नंबर टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। बट चिल्ड्रन यू कैन सी सम सिम्बल्स अबव द नंबर। जैसा कि मैंने बताया कि जो नंबर की है उसमें सारे कीज़ यू कैन सी ओनली वन लेटर और द वन थिंग इज़ टाइप्ड। लेकिन जो नंबर की होता है इसमें दो दो चीज़ें होती हैं, नीचे नंबर्स होते हैं, ऊपर सिम्बल्स होते हैं। यू कैन सी मेनी सिम्बल्स ओवर हियर। दीज सिम्बल्स आर यूज्ड बाय प्रेसिंग स्क्रॉल अलॉन्ग विद द सिम्बल। अगर हमको सिंबल कहीं टाइप करना है तो हम इसे स्क्रॉल बटन शिफ्ट बटन के साथ यूज़ करते हैं। पहले तो हम शिफ्ट बटन को दबाते हैं, ये वाला शिफ्ट बटन है, हम इसको दबाएंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ऊपर का जो सिंबल है वो टाइप होगा, वो एक्टिवेट होगा। तो चिल्ड्रन, नंबर कीज़ में वी हैव टू things, one is symbol and the other is number. Number तो हम directly if we press the button or the keys it will be activated or printed. But if you want to print or use the symbols given above the numbers, you have to use it along with the shift key. तो ये जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दिस इज़ कॉल्ड शिफ्ट की। और शिफ्ट कीज़ भी हमारे यहाँ पे दो जगह पे, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी नहीं, यही दोनों जगह पे है शिफ्ट की, ठीक है। तो हमारे पास दो जगह शिफ्ट की होता है। एक शिफ्ट की यहाँ पे है, हियर वी हैव शिफ्ट की एट टू प्लेसेस, वन इज़ हियर एंड एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड में दो शिफ्ट की है। अगर हमको सिंबल्स वगैरह यूज़ करना है तो हम इस शिफ्ट की के साथ, दीज आर the symbols given along with the numbers. So children, these are functional keys. The ones which we can see here, these are called function keys, F1 to F12. उसके बाद और भी है बगल में, और उसके बाद ये सबसे ऊपर हमारे पास F1 to F12 नंबर फंक्शन कीज़ हैं जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज़। हर एक की का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है वी हैव न्यूमेरिक नंबर कीज़। ये है नंबर कीज़, इट इज़ अरेंज्ड जस्ट अबव द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के ठीक ऊपर अरेंज की, यहाँ तक है, ठीक है। दीज आर नंबर कीज़। और जो नंबर कीज़ के साथ सिंबल्स हैं दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद द शिफ्ट की। एक शिफ्ट की दबाएंगे, फिर ये दबाएंगे तो ऊपर के बटन, ऊपर के नंबर्स या सिंबल्स जो भी हैं नंबर के, वो एक्टिवेट होगा। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अबाउट the number keys. And then we have after number keys we have scroll. These are the, see here we can see we have two things on the same switch. So अगर हमको symbols यूज़ करना है, जैसे कि @ है, exclamatory है, percentage है, हैशटैग है, तो इन सारे को हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तब वी कैन यूज़ दीज नंबर्स। आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी हैव एरो कीज़। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देर आर 4 एरो कीज़, वन अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। अप shows direction upside and down shows just opposite of this. अब
यहाँ पे ये कीज़ हैं, एक की एकदम ये दिस वन इज़ अप की एंड दिस इज़ अपोजिट ऑफ इट डाउन की, दिस इज़ right key and this is left keys. Now you can see on your screen children, up key, ye this key is used, this one, this key is used when you need to move the cursor upward. Cursor का मतलब हम सब जानते हैं, blinking dash which is shown on the, always shown on the, keeps on blinking on the screen, उसको हम cursor कहते हैं. It shows the position बताता है कि where we are at present. So this cursor, when you want to take the cursor upward, you press this upward key. When you want to take move the cursor downward, अगर नीचे लेके जाना है तो you will press the opposite downwards arrow key. And if you want to shift or the cursor character, one character right, you will use this one, and one character left, you will use this one. So these are the 4 functions of the arrow keys. Now all these we have discussed once. Now children, special keys. As I know, these keys are used to perform some particular function. These are used to perform some particular function. On the keyboard we have 2 enter keys. As I told you, one is near the alphabet key and this one is on the number numeric keypad. तो 2 जगह होता है. इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन. अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो वी यूज़ द कर्सर, दिस एंटर की कर्सर. नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिटर्न की. अगर आपको वापस आना है तो भी हम इसको यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिटर्न की. देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड. एज आई टोल्ड यू, देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड. लेट मी शो यू. हमारे पास जो कीबोर्ड फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है उसमें हमारे पास 2, देखो, हियर इज़ द कीबोर्ड. अब कैन यू सी द एंटर? यस, दिस वन इज़ द एंटर. एक ये एंटर की है और दूसरा, रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं, हियर दूसरा एंटर की यहाँ पे, एक ये है और एक ये है. तो ऑन द कीबोर्ड वी हैव 2 एंटर की. दीज एंटर कीज आर यूज्ड टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन और टू रिटर्न, वापस आने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. सो दीज आर द फंक्शन एंटर कीज़. Now next one is special key में we have 2 enter keys. One I showed you the position of 2. One is like this and other is like this. Now उसके बाद space bar. As I told you before also children, space bar is the longest key of the कीबोर्ड. जो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड में हम उसको स्पेस बार बोलते हैं. और इस स्पेस बार को यूज़ करके हम लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में स्पेस देते हैं. जैसे कि अगर हमको हैप्पी बर्थडे टाइप करना है तो हैप्पी लिखेंगे, उसके बाद एक वर्ड हो गया हैप्पी, उसके बाद एक गैप देंगे. वी विल यूज़ स्पेस बार फॉर गिविंग द गैप एंड देन विल यूज़ birthday. We'll write birthday. So these are used for giving a space between the numbers. Now this is the longest key on the keyboard. As we know children, this is the longest key present on the keyboard. सबसे लंबी की है ये. And if you press the space bar, अगर हम space bar को press करेंगे, it will give a blank space. वो जगह भी देगा टू राइट वर्ड्स. किस लिए जगह देगा? हमको वर्ड्स लिखने के लिए या सेंटेंसेस लिखने के लिए. नाउ लेट्स राइट अ सेंटेंस चिल्ड्रन. इफ़ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस. तो हमने कहाँ कहाँ गैप दिया? आई के बाद गैप दिया, लाइक के बाद गैप दिया, टू के बाद गैप दिया. सो चिल्ड्रन, लेट्स राइट अ सेंटेंस. चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं. वेन एवर यू राइट अ सेंटेंस, यू नीड टू ऐड सम spaces. I like to study computer science. There is a space after I, there is a space after like, there is a space after to, after study computer. So these spaces which are shown by the green box are given with the help of space bar. Now next one is, do you notice the gaps in this sentence? These gaps come by pressing the स्पेस बार. ये कैसे आता है? स्पेस बार को प्रेस कर करके आता है. नाउ चिल्ड्रन,
Do you notice the gap in these sentences? These gaps are called, so children, first press I, then space bar, then then type, first type I, then space bar, then type the word like, and then press space bar again. In this manner you can complete the sentence. जैसे कि हम ये पूरा सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले I लिखेंगे, फिर जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे हम स्पेस बार को दबाएंगे, फिर हम लाइक टाइप करेंगे, फिर वंस अगेन विल प्रेस अ स्पेस बार वेयर देर इज़ ग्रीन, जहाँ पे ग्रीन है, फिर हम TO2 लिखेंगे, फिर स्पेस बार दबाएंगे, स्टडी लिखेंगे, फिर स्पेस बार दबाएंगे, और उसके बाद कंप्यूटर लिखेंगे, फिर स्पेस बार दबा के साइंस लिखेंगे. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी विल राइट दिस, आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस. नाउ बैक स्पेस का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, बैक स्पेस का मतलब होता है कि व्हेन यू वांट टू डिलीट समथिंग टुवर्ड्स द you want to erase a letter towards left, तो आप लेफ़्ट से जब इरेज करना शुरू करेंगे तो की इज़ मार्क्ड विथ अ बैक एरो से मार्क्ड है. इट इज़ यूज्ड टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. जहाँ पे आपका कर्सर ब्रिंग कर रहा है उसके लेफ्ट का लेटर को वो डिलीट करेगा. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द साइन ऑफ स्पेस बार. दिस इज़ द साइन ऑफ स्पेस बार. ये जो स्पेस बार की होती है उस पर इसी तरह का साइन बना होता है. ये की भी थोड़ी सी लंबी होती है, स्पेस बार से कम होती है, लेकिन बैक स्पेस जो होती है ये भी थोड़ी सी बड़ी होती है. नाउ PMPP या PMP, तो जैसे हम PMPP लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया. हम इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा P हमने किया इसको हटाना है, तो हम P के पीछे स्क्रॉल बार लेकर के वो कर्सर लेके आएंगे और फिर बैक स्पेस जैसे ही दबाएंगे वो ये हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह का है, इससे P हट जाएगा और ये हो जाएगा PMP. सो दिस इज़ द वे हाउ वी यूज़ स्पेस, बैक स्पेस. नाउ डिलीट की चिल्ड्रन, दिस की इज़ ऑल्सो यूज टू इरेज द कैरेक्टर. लेकिन हम इसको स्पेस बार बैक स्पेस के उल्टा करते हैं. बैक स्पेस में हम लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को रिलीज़ करते हैं या डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं. यहाँ पे राइट साइड ऑफ द कर्सर. ये कहाँ से डिलीट करेगा? ये रिमूव करेगा राइट साइड ऑफ द कर्सर. तो अगर हमको P हटाना है यहाँ पे, तो हम P के आगे लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद डिलीट दबाएंगे तो ये P हट जाएगा. सो दिस की इज़ ऑल्सो यूज टू इरेज द कैरेक्टर बट to the right side of the cursor. You can also delete selected text and graphics using this key. So children, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप एक बार कंप्यूटर खोलोगे और उसको करके देखोगे. आप कुछ भी बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर टाइप करोगे, उसके बाद एक को पीछे से डिलीट करोगे, फिर उसके आगे जाके डिलीट करोगे. पीछे से करोगे तो दैट विल बी स्पेस बैक स्पेस. अगर आगे जा कर के डिलीट करोगे, क्योंकि वो राइट हैंड साइड के कैरेक्टर को डिलीट करेगा, तो हो जाएगा डिलीट की. नाउ कमिंग टू कैप्स लॉक. चिल्ड्रन, एज वी स्टडीड अबाउट द नम लॉक, जैसे कि हमको दो न्यूमेरिक पैड्स होते हैं, नंबर पैड्स होते हैं. तो अगर हमें न्यूमेरिक पैड को एक्टिवेट करना है तो हमें नम लॉक को ऑन करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे कैप्स लॉक की को भी ऐड करना पड़ेगा जब हमें कैपिटल करना है. और कैपिटल लिखने के बाद फिर वापस पे आना है तो उसी पे हम डबल क्लिक करेंगे एंड वी विल रिटर्न बैक टू द स्मॉल लेटर. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ कैपिटल एंड स्मॉल. एंड इफ़ यू वांट टू स्विच इट ऑफ, कैप्स लॉक को दबाओगे वो ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा. कीबोर्ड हैज़ लाइट फॉर कैप्स लॉक दैट इंडिकेट्स whether the caps lock is on or off. तो कीबोर्ड हैज़ अ लाइट, LIGHT, लाइट होता है उसमें फॉर कैप्स लॉक. अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है तो आपकी लाइट जलेगी. दैट इंडिकेट्स वेदर द कैप्स लॉक इज़ ऑन और ऑफ. तब उसी से हमें पता चलता है कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है. नाउ कैप्स लॉक का बटन कुछ ऐसा होता है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. Here it is given, this is the button of caps lock and this is the button of delete. ठीक है. आप बच्चों चैप्टर को अच्छे से जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा.
उसके बाद कैप्स लॉक की। अब इसको हम कैप्स लॉक की करते हैं। अगर हम इसमें को भी हम दबा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो हमको इसको भी ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा। दिस की इज़ यूज टू राइट द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल और स्मॉल लेटर। अल्टरनेट ऑप्शन इसका रहता है, अगर आप कैप्स लॉक को पहले बार प्रेस करेंगे तो जो लेटर आप लिख रहे हैं वो कैपिटल में लिखा आ जाएगा, फिर उसको ऑफ करेंगे तो वही लेटर्स स्मॉल में लिखा आएगा। कीबोर्ड हैज़ अ लाइट फॉर कैप्स लॉक। कैप्स लॉक वाले की पे एक लाइट जल रही होती है, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो लाइट भी ऑन रहेगी। वेदर द कैप्स लॉक विच इंडिकेट्स वेदर द कैप्स लॉक इज़ ऑन और ऑफ। ये हो गया आपका कैप्स लॉक। Then we have shift key children. As I told you, there are some symbols given along with the numbers in the keyboard. तो अगर हम एक बार उसको प्रेस करेंगे नंबर की को तो नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन जब उसके ऊपर दिए गए हमको सिम्बल्स को यूज़ करना है तो हमें उसे शिफ्ट की के साथ यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल द यूज़ ऑफ सिम्बल की। देर आर टू शिफ्ट कीज़ which are used in combination with other keys. Some keys have special symbols marked on them. You can type these symbols with the help of shift key. आप इन symbol को shift key के साथ दबा करके use कर सकते हैं, and this is the key of our shift key. Now, so children, I hope you will have no problem working with a keyboard. Now go to your computer lab and try working with a keyboard and explain its different keys. So children, in this way, by now we have understood all the functions of different keys present on the keyboard. We will we have gone through the original keyboard also. We have we have seen all the functions of keyboard showing the original keyboard, and we have studied also. By now I hope you must have understood. Now with this will come to the self evaluation. Children, self evaluation, after reading this the chapter, children, we have read the chapter. After reading the chapter, we know that the कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर. अगर हमको कुछ भी कंप्यूटर पे टाइप करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो वी यूज़ कीबोर्ड. सो यू विल पुट अ tick in this box that I agree with the statement. I know that buttons present on a keyboard are called the keys. So we also studied from the chapter that whatever buttons we see on the keyboards, these buttons are called keys. Now I have learnt that the keys marked with A to Z are called alphabet keys. As I told you, there are several keys present on the keyboard. और बच्चों ये सारे कीज़ जो A to Z होते हैं इसको हम अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं. क्यों? और यही हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि ऑल द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नोन एज अल्फ़ाबेट कीज़. नाउ I know that function keys are marked with F1 to F12. We also studied about the function keys. These function keys are present at the top of the keyboard, and these are marked as F1 to F12, and each and every key have their own function. हर एक की का अपना अपना function होता है. So you will mark here true. All these we have studied from the chapter. I know that a cursor is a small blinking line on the स्क्रीन. हमने कर्सर के बारे में भी पढ़ा था कि एक ब्लिंकिंग लाइन है जो हमेशा स्क्रीन पे ब्लिंक होती रहती है, हाईलाइट होती रहती है, इसको हम कर्सर कहते हैं. यही कर्सर हमको पोजीशन बताता है कि वेयर वी आर ऑन द कीबोर्ड. आई नो दैट एरो कीज़ आर यूज्ड टू मूव द कर्सर. मुझे ये भी पता है कि एरो की इज़ यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर. एरो की से हम कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. So children, let us revise once again, recapitulation, self-evaluation also, how much we have studied or understood in the chapter. After reading the chapter, I know that children, पूरे पार्ट को पढ़ने के बाद या पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद we have come to know that कि कीबोर्ड is used to type
on a computer. अगर हमें कुछ भी टाइप करना है कंप्यूटर पे तो हम किसके थ्रू टाइप करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू टाइप करेंगे. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट whatever we want to type on the computer we type through keyboard. So you are here, you will put a tick that I agree with this. I have studied in the chapter that whatever we type on the computer is typed through the keyboard. Or next one, I know that buttons present on the keyboards are called keys. और हमने पढ़ा है कि कीबोर्ड पे जितने भी बटन्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कीज़. जितने भी बटन्स हमने अभी जितने बटन्स के बारे में हमने पढ़ा है कीबोर्ड पे, चाहे वो नम कीज़ हो, चाहे वो नंबर कीज़ हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट कीज़ हो, या कोई स्पेशल सिंबल्स हो, या फिर स्पेशल कीज़ हो, सबको हम यहाँ पे कीज़ कहते हैं. नाउ आई हैव लर्नड दैट द कीज़ मार्क्ड विथ A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट की. जैसे कि हमने पढ़ा कि वहाँ पे अल्फ़ाबेट कीज़ भी प्रेजेंट होते हैं कीबोर्ड पे, और ये किससे मार्क्ड होते हैं? A to Z अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम पे ही मार्क्ड होते हैं. नाउ दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. सो यू विल पुट अ टिक ओवर हियर. सो लेट अस सी. अब this is true, this one is also true, that means I agree with this one is also true, I agree with this. I know that function keys are marked with F1 to F2. जितने भी function keys है वो F1 से F12 तक marked है. I know that cursor is a small blinking line on the cursor. अब हमें ये भी पता चल गया कि जो small blinking line होता है उसको हम cursor कहते हैं, जो हमेशा blink करता रहता है, highlight होता रहता है. Now I know that arrow keys are used to move द कर्सर. जो एरो कीज़ है वो कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ होता है. सो चिल्ड्रन, वी हैव स्टडीड दैट अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू टाइप ऑन कंप्यूटर. बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड कीज़. आई हैव लर्नड दैट द कीज़ मार्क्ड विथ A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. आई नो दैट फंक्शन कीज़ आर मार्क्ड विथ F1 to F12. I know that cursor is a small blinking line on the screen. So these are the points which we have studied and understood from the chapter, and I agree with all these points. So children, थोड़ा सा difficult है, but once you read once or twice you will be able to understand, and we have discussed the chapter very well. So we will be revising it once again in our next video. Till then, thank you.